rational number part 3. We already uploaded the video up to part 2. In part 2 video already learned the multiplication, addition, subtraction. This is now time for the division. First of all, we learn some properties of division of rational number. First property is closure property. When you take two rational numbers, suppose given a by b and c by d are two rational numbers, when you divide them, that's see here, a by b divided c by d, you get the answer in also rational form. Clear? Okay. Second property, commutative property. Division is not commutative. What do you mean by is not commutative? That means when you take two rational number, when you divide AB by CD and CD by AB is not equals to. Clear? Is not equals to. That's why written here division is not commutative. It is called commutative property. The third one is associative property. See written here division is not associative. That means when you given three rational numbers, see a by b, c by d, e by f. That means when you divide a by b, division in bracket c by d divided by e by f is not equals to a by b divided c by d divided by e by f. See written here division is not associative. Not associative means what? That their answer is never be equal. Clear? Okay. Let's do some sums. First question is 1 by 2 divided by 3 by 4. 1 by 2. We know that very well when we change this sign divide into in multiplication form, the term is reciprocal. Okay. So that means 1 by 2 into 3 by 4 converted into 4 by 3. You got the answer what? 2 by 3. 2 by 3. Okay. 2 subpart 1. 3 divided by minus 5 divided by whole term minus 9 by 15. We know that when you change the sign in multiplication, the number is reciprocal. That means converted into minus 50 by 9. We got the answer 10 by 3. Okay. In 4a, see the question is the product of two rational number. Product means what? Multiplication. Product means what? Multiplication. When you multiply two rational number, you get the answer minus 12 by 13. First of all, we read the question. The product of two rational number is minus 12 by 13. If one of them is 8 by 15, find the other. In this question mentioned that when you multiply, product means multiplied. When you multiply two rational number, you get the answer what? Minus 12 by 13. If one of them is given, what is your first number? 8 by 15. Find the other. So, solution is let the other number be x. When x multiply by first number 8 by 15, what we got? We got minus 12 by 13. Clear? Therefore, x equals to minus 12 by 15. 12 by 13. 15 here is division portion. That's why you got here into, and this is going to divide. Clear? So, we get the answer minus 45 by 20x. Okay. In question number 5a, by what rational number should minus 8 by 25 be divided to get 3 by 10? Clear? First of all, read the question carefully. By what rational number minus 8 by 25 be divided? यानी कौन से रैशनल नंबर से माइनस 8 बाई 25 को डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा आपका 3 बाई 10. तो लेट x बी डिवाइडेड. दैट मीन्स क्वेश्चन ऐसे है माइनस 8 बाई 25 को कौन से नंबर से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 3 बाई 10. तो हमने किससे डिवाइड किया है? x से, और आंसर कितना आया? 3 बाई 10. सो माइनस 8 बाई 25 मल्टीप्लाई reciprocal the term 1 by x equals to 3 by 10. Minus 8 into 1 minus 8. 25 into x. 25x equals to 3 by 10. When you cross multiply, see 25 into 3 75x and 8 into 10 minus 80. Therefore x equals to minus 80 by 75. That means what? Minus 16 by 15. Okay. Question number 7. Divide the sum of 5 by 8 minus and 13 by 12 by the product of 2 by 3 and 27 by 8. इसका मतलब क्या हुआ? आपको डिवाइड करना है. किसको डिवाइड करना है? सम ऑफ इन दोनों नंबर का सम निकाल कर जो आंसर आएगा उस आंसर को इन दोनों नंबर के प्रोडक्ट निकाल दीजिए, यानी मल्टीप्लाई कर दीजिए. यानी इन दोनों नंबर को ऐड करना है और इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करना है. उसके बाद जो दोनों आंसर आएगा उन दोनों आंसर को डिवाइड करना है. तो हम सोल्यूशन को चेक करते हैं. जैसे क्वेश्चन लिखा था सम ऑफ ये दोनों नंबर का 5 बाई 8 प्लस 13 बाई 12 डिवाइडेड बाई किससे डिवाइड करना है? प्रोडक्ट ऑफ किसके प्रोडक्ट से? 2 बाई 3 और 27 बाई 8, यानी प्रोडक्ट ऑफ 2 बाई 3 इंटू 27 बाई 8.
क्लियर। सॉल्व कर रहे हैं, 8 और 12 का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 24। इसको सॉल्व करेंगे तो इस पोर्शन को कितना आएगा 41/24, और यहाँ पे इसको जब प्रोडक्ट करेंगे तो आएगा 54/24। ये डिवाइड का साइन जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, 24 कट हुआ, बचा 41/54। क्लियर, ओके। अब आता है नेक्स्ट एक्सरसाइज है जो आपके वर्ड्स प्रॉब्लम में टोटली मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, जितना भी हम लोग सीखें डिवीजन, उस पर अब वर्ड प्रॉब्लम पे सम्स किया जाएगा। तो 1D का पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, अजय कट अ 19 3/5 मीटर लॉन्ग रोप इनटू 2 पीस ऑफ लेंथ 3 1/4 मीटर एट 8 1/2 मीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ द रिमेनिंग रोप। यानी जो अजय है उसके हाथ में टोटल लेंथ ऑफ रोप कितना है 19 3/5। उस रोप में से उसने 2 पीस में लेंथ 2 पीस में रोप ऑलरेडी कट कर चुका है। पहला जो कट किया वो 3 1/4 है और सेकंड जो है वो 8 1/2 ये किया हुआ है। तो पूछा गया फाइंड द लेंथ ऑफ द रिमेनिंग रोप, यानी बचे हुए रोप कितने हैं। तो टोटल लेंथ ऑफ रोप हमारा दिया हुआ है 19 3/5 मीटर। क्लियर, इसको सॉल्व किया तो है 98/5 मीटर। सम ऑफ कट 2 पीस, जो 2 पीस काटे थे, कितने काटे थे 3 1/4 और 8 1/2। इसको जब सॉल्व किया गया तो मेरा कटा गया था 47/4 मीटर, यानी इस टोटल रोप में से इतना रोप कट कर दिया गया था। तो रिमेनिंग लेंथ क्या होगा, जो टोटल लेंथ है 98/5 उसमें से क्या लेस करेंगे 47/4। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो मेरा आंसर आएगा 17/20 मीटर। क्लियर, ओके। इस क्वेश्चन का 7 नंबर, द स्पीड ऑफ अ कार, सी द क्वेश्चन, द स्पीड ऑफ अ कार इज 60.5 किलोमीटर, ठीक है, किलोमीटर पर आवर, यानी 1 घंटे में इस कार की स्पीड कितनी है 60.5 चलती है। 1 किलोमीटर एक घंटे में कितना दूर जाती है 60.5 किलोमीटर। फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय इन 4 1/5, यानी 4 1/5 आवर में ये कार कितना दूर डिस्टेंस कवर करेगी। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला ऑलरेडी हम लोग पढ़े हुए हैं, स्पीड इंटू टाइम। तो स्पीड के जगह पे क्या लिख देंगे 61.5 इंटू टाइम के जगह पे क्या लिखेंगे 4 1/5। इस प्रोसेस को जब पूरा सॉल्व करेंगे तो मेरा आंसर आएगा 22,541 मीटर किलोमीटर बाई 10। इसका मतलब इसको फ्रैक्शन में जब डालेंगे 254 1/10 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फॉर्म हुज लेंथ इज 47 2/5 मीटर एंड ब्रेथ इज 36 1/4 मीटर। क्लियर, यानी आपको क्या निकालने बोले, रेक्टेंगुलर फॉर्म है जिसका एरिया आपको कैलकुलेट करने के लिए कहा गया, जिसका लेंथ गिवन दिया हुआ, ब्रेथ गिवन दिया हुआ। वी नो दैट वेरिएबल एरिया ऑफ द रेक्टेंगल व्हाट, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल्स टू लेंथ इनटू ब्रेथ। लेंथ मेंशन 47 2/5 into breadth 36 1/4. When you solve this, when you multiply length into breadth, we get 1718 1/4 meter square. Clear? Okay. See question number 12. If 2/3 of a rational number exceed its 3/5 by 1 3/4, find the rational number. यानी एक रैशनल नंबर बताइए, फाइंड द रैशनल नंबर बताइए जिसका 2/3, जब उस रैशनल नंबर का 2/3 निकाल रहे हैं वो उससे अगर एक्सीड कर रहे हैं, यानी वो उसका जब 3/5 निकाल रहे हैं तो दोनों में कितने का फर्क रह रहा है 1 3/4। क्वेश्चन को अच्छे से समझिए, कहा गया है 2/3 ऑफ अ रैशनल नंबर, तो किसी भी रैशनल नंबर का 2/3 उसका 3/5 से कितना एक्सीड कर रहा है 1 3/4। तो हम लोग पहले लेट द रैशनल नंबर भी x मान लेते हैं, उसका 2/3 यानी 2/3 इंटू एक्स, ये क्या हो जाएगा 2x/3, और इसका 3/5 यानी 3/5 इंटू एक्स यानी 3x/5। तो हमारे क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि इन दोनों रैशनल नंबर में कितने का फर्क है 1 3/4 का, यानी इस रैशनल नंबर से इस रैशनल नंबर कितना ज़्यादा है 1 3/4, यानी इससे जब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमको पता चल जाएगा कितना है 1 3/4। तो 3 और 5 का एलसीएम ले 15, सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा x/15 इक्वल्स टू 7/4। x का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, 15 यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, 15 × 7 105/4, यानी रैशनल नंबर 105/4 था।